समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः. Anybody wants to chant? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः. Anybody else? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं यति नास्ति अत्र संशयः. अंतकाले च मामेव मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति संशयः. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Laga? You can follow this. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Sagrajatam Sahagna Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhantamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Namaste Tapta Kanchana Gaurani Vrindavaneshwari Vishwanusute Devi Pranamami Hari
सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This chapter starts with Arjuna asking this question. So अर्जुन प्रश्न पूछते हैं पहला, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। राइट, अधियज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम न्यायोसी नियतात्मभि। ब्रह्मन क्या होता है, राइट, और सेल्फ आत्मा क्या होता है, और कर्म क्या होता है, राइट, और अधिभूतम क्या होता है। अधिभूतम का मतलब भौतिक प्रकृति। अधियज्ञ क्या होता है, और जो प्रयाण काल मीन्स जो शरीर त्याग करने के टाइम पे जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राइट, ये प्रश्न पूछते हैं। भगवान उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। राइट, हम इंडिया में बहुत सारे योगी लोग हैं, लेक्चर देने वाले हैं, वो लोग बोलते हैं हम सब भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि। राइट, आप में से कितने लोग कोई सोचते हैं ऐसा, हम ब्रह्मास्मि? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भगवद गीता में और एक बात बताई भगवान ने कि मैं परब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम। राइट, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्पिरिचुअल नेचर इज अध्यात्म। कर्म क्या होता है, ये बात आपको समझना चाहिए। कर्म क्या होता है? या एक्शन क्या होता है? What is the definition of कर्मा? हम सब कर्म करते हैं ना दिन बाद, या अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का डेफिनेशन क्या है? जो सबको अच्छा लगे, ऐसा कर्म जो सबको अच्छा। जो सिगरेट पीते हैं सब, कुछ लोगों को बुरा लगता है, वो कर्म नहीं है? हाँ, उसको भी कर्म बोलते हैं, कर्म का फल। कर्म बुरा किया कि उसका फल ऐसे मिलेगा, अच्छा किया तो वो बात अलग है। हमको कर्मों का फल मिलता है, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल, बुरा कर्म वो सब लोग जानते हैं, लेकिन कर्म क्या है? देखो, याद रखना, जो कार्य हमारा अगला शरीर बनाता है वो कर्म है। समझ में? हाँ, द एक्टिविटी which makes your next body is कर्म। कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, फिर करेंगे तो अगला बॉडी मिलेगा। लेकिन जिसको अगला बॉडी नहीं चाहिए वो कर्म नहीं
कर्म तो थॉट से ही होता है, थॉट्स में भी कर्म क्रिएट होते हैं। हाँ, वो तो है। ये बात आपको समझ में आएगा अगला टाइम। कोई भी कर्म करने से पहले आप सोचेंगे, क्योंकि मैं ये कर्म करूँगा तो अगला शरीर मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा शरीर मिलेगा। इसके वजह से हमको कर्म से कैसा बचना है, हमको यही बात भगवान ये चैप्टर में सिखाने वाले हैं, राइट। अधिभूतम क्षरोभाव। अधिभूतम का मतलब भौतिक प्रकृति। ये जो प्रपंच है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अधिभूतम क्षरोभाव। अधिभूतम क्षरोभाव का मतलब एक बार डॉक्टर बेनफोर्ड करके एक साइंटिस्ट प्रभुपाद जी के साथ डिस्कशन कर रहे थे। उस समय प्रभुपाद जी ने बोला, आप लोग कभी भी ये भौतिक प्रकृति के बारे में जान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति आप रिसर्च करेंगे, बोलेंगे ये ऐसा है, लेकिन भौतिक प्रकृति का स्वभाव है बदलता रहता है। इसलिए पहले डाल्टन बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। उसके बाद नील्स बोर ने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और किसी ने बोला दिस फैराडे ऐसे बोलते। ये नील्स बोर ने बोला ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी कुछ जेटॉन ऐसा कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, CERN करके, हाँ या ऐसा बदलता रहता है। इसलिए ये भौतिक प्रकृति के बारे में सच्चाई हम कभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। अधिभूतम क्षरोभाव पुरुषश्च आदिदैवतम। मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांस्ड है, राइट, बहुत ही एडवांस्ड है। ऑपरेशन करता है आजकल, ये सर्जरी भी कर लेते हैं रोबोट्स। लेकिन किसी को पैरालिसिस हो जाता है, वो हाथ ऊपर नहीं कर सकता है, क्यों? उसके लिए कोई दवा नहीं है ना। जैसा कि हमारा जो सीइंग है, हम देखते हैं, वो रिलेटिव है। जैसा कि हमारे पास आँख है, सूर्य का कांति नहीं है तो हम देख नहीं सकते हैं। सूर्य का कांति है लेकिन आँख नहीं है तो देख नहीं सकते हैं। लेकिन किसी के पास सूर्य का कांति भी है, आँख भी है, फिर भी वो कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, अंधे लोग। क्यों? आपको याद रखिएगा, हमारा सेंसस के ऊपर अधिदेवता है। अधिदेवता का मतलब हैंड्स है। हम वो लोग बोलते हैं ना, जोक करते हैं, इंडिया में, हिंदू में, देव मत में वो लोग 33 करोड़ देव देवता है। सच है, क्योंकि उनको काम दिया गया है। हमारा हर, जैसे कि हमारा, मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, ये हाथ में है ना, इंद्र भगवान बैठे हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ मेरा हाथ उठना चाहिए, इंद्र भगवान उठाते हैं, राइट, उठाते हैं। वैसा ही मेरा वॉक मीन्स मेरा स्पीच, उधर है ना अग्निदेव बैठे हैं। अग्निदेव हम मेरे से बुलवाता है। ऐसा हर एक इंद्रिया का हर एक देवता है। हम जैसा हम खाना खाते हैं, कैसा डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपको मालूम है? हम खाते हैं लेकिन फूड डाइजेस्ट होता है, कौन करता है? उसके लिए एक देवता है, राइट? समझ में आ रहा है?
वो भगवान है, राइट? अधिदेवता, अधियज्ञ का मतलब जो हमारा हृदय में विराजमान है भगवान। ये बहुत वेदांत आप लोग समझ में नहीं आए, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा तो। लेकिन ये जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये वो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि अंतकाल में जो बेंगलुरु में पंडित रविशंकर करके एक है, वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन भगवद गीता में आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है, राइट? कुत्ता बिल्ली भी जी लेता है, वो जी लेता, उसको मालूम, लेकिन कैसा मरना है वो सीखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है सबसे। जैसा कि एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यंग कर रहा था अमेरिका में कि वाई देर इज मॉर्टैलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मॉर्टैलिटी रेट इज सेम एवरीवेयर 100%, आगे पीछे सबको मरना ही है, राइट? आप में से कितने लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं? हर एक डरते हैं? क्या होगा, पीछे से बच्चे लोग का, ये सब डरते हैं, और कोई खास डरते नहीं। वो तो चिंता को खाती है, that is not लगाव, attachment, that is not that। दो चीज़ है ना, हमेशा याद रखना चाहिए, दो चीज़ हमेशा भूल जाना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए। एक है मृत्यु, दूसरा है कृष्ण भगवान, राइट? ये दोनों चीज़ को हमेशा याद करना चाहिए, और दो चीज़ों को हमको भूलना चाहिए। जो कुछ लोग हम किसी को उपकार करते हैं, मीन्स सहायता करते हैं, उसको भूल जाना चाहिए, है ना, एहसान जताना चाहिए। और कुछ लोग हमको अपकार करते हैं, मीन्स हानि करते हैं, उसको भी भूल जाना चाहिए, राइट? दो चीज़ हमेशा, कौन सा? उपकार और अपकार। दो चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आपको याद रहना चाहिए कि मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा, कुछ करना चाहिए, राइट? अरे साइंटिस्ट लोग इतना एडवांसमेंट किया है, राइट? वो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, राइट? हम एक ही बात हमसे उनसे पूछते हैं, आप मृत्यु को ऊपर जीत पालो, मैं हम बिलीव करेंगे भगवान नहीं। हम मर रहे, इसका मतलब हमको किसी ने मार रहा है, वो कौन है? भगवान। ये श्लोक में कृष्ण भगवान हमको सॉल्यूशन दिए हैं, मृत्यु से कैसे जीतना है, मृत्यु के ऊपर कैसा जीत पाना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं वापस जन्म ना ले? आप वापस जन्म लेना चाहते हैं? नहीं लेते हैं तो कहाँ होते हैं? पता, वो तो बताऊंगा। तो सुसाइड करेंगे। याद रखना, ये क्लास आप सुनेंगे अच्छा से और याद करेंगे, आपको ज़रूर आपका सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? भगवान इधर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए
शरीर त्यागता है वो वापस जन्म नहीं लेगा। राइट, उसको बोलते हैं अंत्य नारायण स्मृति। हिंदू धर्म में इसलिए बोलते हैं मरने वाले के मुंह में थोड़ा तुलसी का जल डाल के नारायणा करके कान में बोलने का। ये श्लोक आप एनालाइज करो। अंतकाले चा, चा, चा का मतलब ऑल्सो मीन्स पूरा लाइफ में मेरा स्मरण करना चाहिए और मृत्यु के टाइम में भी स्मरण करना चाहिए। और मामेवा, मामेवा का मतलब ओनली मी, राइट, ओनली मी, सिर्फ मुझे। अंतकाले च मामेवा स्मरण। भगवान ने ये नहीं बोला मेरे बारे में सुनो या मेरा कीर्तन करो। उन्होंने क्या बोला? हाँ, स्मरण बोला। क्यों ललित वाक्य? इज देयर सम ग्रामेटिकल एरर और भगवान ने जानबूझकर बोला, ऐसा मिस्टेक से बोल दिया? क्योंकि हमारा प्रोसेस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास है ना, लेकिन इधर भगवान बोल रहे हैं स्मरण। क्यों? Whoever you remember at the time of death, you will go. You will go because if you remember your dog, you will become a dog. वो बाद में दे दे। क्योंकि हमारा कान एक्चुअली हमारा बोलना बंद हो जाता है क्योंकि कफ वगैरह जम जाता है मरने वाले के थ्रोट में, राइट, कंठ में। और लास्ट सेंस टू फेल इज हियरिंग। ऐसा तो ओल्ड पीपल के लिए सुनाई कम पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेल हो जाता है। लेकिन जो कोमा में चला गया वो कैसे स्मरण करेगा? वो भी करे। मैं आता हूँ उससे उसको लेकिन हमारा स्मरण शक्ति नहीं जाएगा। हमारा मन लास्ट मिनट तक काम करता है। इसलिए मन का काम क्या है? स्मरण। इसलिए भगवान बताए कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा स्मरण करते हुए, कलेवरम का मतलब शरीर, मुक्त्वा मतलब छोड़ देना। शरीर त्यागने का टाइम पे मुझे स्मरण करते हुए, सिर्फ मुझे स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है, भगवान बोल रहे असंशय, संशय मत करो। हमको संशय होता है ना, अरे ऐसा होगा क्या, लेकिन भगवान एश्योरेंस दे रहे असंशय मामेवा, राइट। यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। मद्भावम का मतलब मेरा नेचर, मेरा नेचर। सो कृष्ण का नेचर क्या है? बोलो ललित भाई, व्हाट इज कृष्णास नेचर? हमारा नेचर क्या है? कृष्णास नेचर इज सच्चिदानंद विग्रह, सत, चित और आनंद। हमारा असत, अचित, निरानंद। हमारा शरीर अशाश्वत है, हम अज्ञानी हैं, हमेशा दुखी है हम, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान सच्चिदानंद। याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। यू नो, भगवान एश्योरेंस दे रहे कि इसका डाउट मत करो। समझ में आया?
सो हमारा लाइफ का गोल यही होना चाहिए, कैसा इसलिए मृत्यु, हमको कैसा मरना है, हमको कैसा मरना है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो आएगी, राइट? मृत्यु तो आएगी जरूर, लेकिन हमको कैसा मरना है उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसा मरना है भगवान दिया, कैसा? अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए, अंतकाल में भी, एक्चुअली अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है उसको जन्म नहीं है, मेरे जैसा बन जाएगा। क्यों माता जी? नाउ यू वांट टू अवॉइड डेथ? हाँ हाँ, क्योंकि आप कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेंगे, आप कृष्ण जैसे बन जाएंगे। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, मीन्स उनका कभी मृत्यु नहीं है, हमेशा आनंद में रहते हैं और हमेशा ज्ञान में रहते हैं, संपूर्ण ज्ञान। हम उनके जैसा बन जाएंगे, हमारा शरीर भी सच्चिदानंद हो जाएगा, और उसके बाद हम कृष्ण के साथ खेल सकते हैं। हमारा कार्य वगैरह बंद नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद, मुक्ति के बाद हम इनएक्टिव हो जाएंगे। एक्चुअली वो फैक्ट नहीं है। आत्मा देखो, हम सोने के टाइम में भी हम एक्टिव रहते हैं, है ना? सपना देखते रहते हैं, हम हमेशा एक्टिव है। हमारा बंधन का स्थिति में हम इतना एक्टिव है, हम जब मुक्त हो जाते हैं आत्मा कितना एक्टिव हो सकता है ना? इसलिए भगवान जब आते हैं, लीला करते हैं और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, भगवान तुम लोग इतना हार्डवर्क करते हो, फैक्ट्री में जाके इधर उधर बिजनेस में काम करते हो, फिर उसके बाद आप लोग खुश नहीं है। आपने कभी देखा एलिफेंट कितना खाना खाता है? एलिफेंट कोई फैक्ट्री में जाके काम करता है? हाँ, राइट? कोई काम नहीं करता है। जैसे कि फॉरेस्ट में इतने सारे एलिफेंट्स हैं, उन लोगों को खाना कौन दे रहा है? अरे आपने कभी देखा कुत्ता स्ट्रेस के वजह से मर गया? हाँ, ये बुद्धू क्या नाम है, नारायण मूर्ति बोल रहे अरे आजकल 17 घंटा काम करना चाहिए, राइट? अरे कुत्ता बिल्ली किधर काम करते हैं? उनको खाना मिलता है कि नहीं? ये काम करने से अब आप लोग दुखी हो जाते हैं, है ना? हमेशा हस्बैंड हमेशा बिजी रहता है, वाइफ इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग यू आर नॉट गिविंग टाइम टू मी। हाँ, फिर उन लोगों को भी इतना ट्रैवलिंग, ये सब भगवान, आपको भगवान का लीला देखेंगे, हमेशा आनंद में रहते हैं और उनके साथियों के साथ हमेशा भगवान खेल रहे हैं। हाँ, हर दिन पिकनिक है भगवान का, राइट? फिर भगवान के जैसा बनने का मतलब भगवान के साथी बन जाएंगे और वापस जन्म नहीं लेने का जरूरत नहीं है। आपको मंजूर है? हाँ, आपको मंजूर है भगवान के साथ खेलने का? हाँ, भगवान के साथ खाने का, भगवान के साथ नहाने का? हाँ, सिर्फ भगवद गीता में और भागवत में इन्फॉर्मेशन दिया है। आप लोग क्रिश्चियन लोगों के पास जाइए, बोलेगा भगवान कौन है, उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट? मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह को रूप नहीं है, अल्लाह को रूप नहीं है। तो मैं एक व्यक्ति को पूछा था, एक मुसलमान को, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह देख रहा है। फिर आप लोग बोलते हैं अल्लाह को रूप नहीं है। हाँ, फिर अल्लाह कैसा देखेगा? फिर उसको इंटेलिजेंस नहीं है, ब्रेन, रूप नहीं है, तो रहम कैसा करेगा? लेकिन हमारा वेदास में
पूरा वर्णन है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, कैसा दिखते हैं, राइट, ये सब इन्फॉर्मेशन है हमारा भागवतम में और भगवद गीता में पूरा, राइट। इसलिए भगवान हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम लोग मेरे साथ आओ, खेलो, आनंद लो, फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बड़ा बड़ा सोसाइटीज़ युद्ध वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है, चलो हमारे साथ रहो। वो उसके लिए इनविटेशन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मरने का टाइम पे स्मरण कर। आपका नाम क्या है? आधुनिका। आप हमारे इस्कॉन में भरतनाट्यम प्रोग्राम दे सकती है? नहीं ना, नहीं आता है। लेकिन हेमा मालिनी को बोलेंगे भरतनाट्यम करने का, वो कर सकती है। मैं जब 1988 में पहली बार जब भगवद गीता मैंने खरीदा था, प्रभुपाद जी का गीता खरीदा था, हमारा फैमिली में बहुत ही पायस थे वो लोग, ब्राह्मण लोग हैं। मेरा मदर, मेरा सिस्टर, सब बड़ी माँ, छोटी माँ, सब लोग, मौसी, सब लोग ये वो लोग दूसरा पात में थे। लेकिन कभी कभी सत्संग होता था, वो लोग चर्चा करते थे कि अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, ऐसा बहुत प्रचलित है ना आंध्रा में, अंतकाल में नारायण का स्मरण करते हुए मरना चाहिए। फिर मैंने पहली बार जब भगवद गीता मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी का गीता मैंने जब 1988 में लिया था, मैं पढ़ने लगा तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं और लिखते हैं कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर मैंने सोचा था अभी एंजॉय करेगा, अभी मालूम हो गया कि अंतकाल में स्मरण करना चाहिए, अभी एंजॉय करेगा। फिर बाद में प्रभुपाद जी हमको एक्सप्लेन किया, ये कोई ऐसा किसी को बोलेगा डांस परफॉर्मेंस देने का, लेकिन हम नहीं सकते। लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेंड है, हर दिन हेमा मालिनी हर दिन प्रैक्टिस करती है, इसलिए उसको बोल देगा तो तुरंत। वैसा ही जो व्यक्ति जिंदगी भर प्रैक्टिस करता है, हरि कीर्तन करना, भगवान कृष्ण का स्मरण करना, वो ही व्यक्ति अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सकता है। गांधी जी का सेक्रेटरी एक तमिलियन था, क्या नाम मालूम मैंने भूल गया नाम उसका। जब मरने का टाइम पे वो व्यक्ति उधर मौजूद प्रेजेंट था, उन्होंने लिखा है, सब लोग को ये प्रचलित है कि गांधी जी ने हे राम बोला है करके, लेकिन ये गलत है। गांधी जी ने हे राम बोला नहीं बोलते। जब प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, वो हमेशा बोलते थे कि वो कैसा बोल सकता है, क्योंकि जिंदगी भर मेरा भारत भारत है, भारत है, भारत है, और ब्रिटिशर्स यू गेट आउट, ब्रिटिशर यू गेट आउट। उसका कॉन्शियसनेस पूरा इंडिया इंडिया इंडिया, राइट। फिर वो कैसा बोल सकता था? फिर बाद में उसका सेक्रेटरी कंफर्म किया था कि गांधी जी ने बोला नहीं था हे राम करके, क्योंकि जिंदगी भर एक चीज़ के बारे में हम काम करते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री चलाता है, वो हमेशा वही ध्यान में रहता है हमेशा कि कैसा प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसा ज़्यादा प्रॉफिट कैसा करना है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भगवान का स्मरण कैसा करेगा? एक हाउसवाइफ, वो हमेशा हमारे अपने पति और अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है, और पोता पोती के बारे में सोचते रहते हैं, घर के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भगवान के बारे में स्मरण कैसा करे? उसके लिए ट्रेनिंग जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला हम सबको सिखाएंगे कैसे मरना है। मरने के लिए जैसा कि प्रयाण काल है, प्रयाण काल आपको जर्नी, आपको 12 तारीख को आपको वृंदावन जाना है, टिकट है। उसके लिए आप क्या क्या करते हैं?
हाँ, तैयारी तैयारी करते हैं ना, है ना? तैयारी करना चाहिए कि नहीं? आप वृंदावन जा रहा हूँ, इसका मतलब ठंडी रहेगी, स्वेटर लेना पड़ेगा, हाँ हाँ, और ओडोमस का मच्छर रहेंगे, हाँ, ओडोमस का कैरी करेगा, और कपड़े इस्त्री विस्त्री करके तैयार करेगा, और टॉयलेटरीज वगैरह खरीद करके रखे, सब सूटकेस चाहिए तो सूटकेस खरीदना पड़ेगा, ये सब तैयारी करके रखना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 12 तारीख को जाना है बस ट्रेन में बैठ गया, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ हाँ, या फिर गुजराती लोग हैं तो वो इतना सारे तेपला, काकरा, हाँ हाँ, कहूँ छू हम सो दिन भर ट्रेन में जाएगा तो खाते रहते हैं वो लोग, फिर उसके लिए अलग से बैग पैक करना पड़ेगा, राइट? ये सब वैसा ही, दैट इज ओके। मृत्यु का टाइम पे वो ठीक है, लेकिन उससे पहले का काम बहुत इम्पोर्टेंट है ना? पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कैसा तैयारी कर रहे हैं, राइट? उसके लिए ABCD, ABCD जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं ABCD? बोलिए। A फॉर, बोलिए। हाँ हमारा अलग है। A फॉर एसोसिएशन, बोलिए। A फॉर, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, प्रसादम, राइट? ABCD। अब बोलिए, A फॉर एसोसिएशन विथ डिवोटीज। Prabhupada, somebody asked Prabhupada, how to become a devotee? Then Prabhupada counter questioned, how do you become a drunkard? How do you become a drunkard? By associating with a drunkard. या पहले आप लोग ड्रंकर्ड के साथ जाएंगे ना, पहला 2-3 दिन है ना, पैग वो फ्री में पिलाएगा, बाद में आदत दिलाएगा, फिर आपसे लेगा, राइट? वैसा ही भक्त बनना है, भक्तों के साथ संग करना चाहिए, राइट? हर संडे हमारा मंदिर में लेक्चर होता है, शाम को मैं इंग्लिश में भागवतम का लेक्चर देता हूँ, आप लोग आ सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 दिन आपको भक्तों के साथ संग करना चाहिए और प्रसाद लेना चाहिए, राइट? ऐसा आपका प्रवृत्ति बदलेगा। नहीं तो अभी आपका हमारा स्वभाव यही है कि कैसा एंजॉय करने का, हमेशा सोचते रहते हैं, राइट? और लेकिन भक्तों के साथ संग करेंगे, एंजॉयमेंट है, लेकिन कृष्ण के साथ कैसा एंजॉय करने का हम सिखाएंगे। एंजॉयमेंट तो है, हम भी एंजॉय करते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ, राइट? जैसा कि लोग नाचते हैं, हम भी नाचते हैं, राइट? मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ये हमारा एक माता जी आती है लोखंडवाला से, जब भी नीचे आती है 4 बजे मंगल आरती आने के लिए, कुछ लोग हैं ना ऊपर जाते हैं, पार्टी करके जाते हैं, नशा करके, राइट? फिर वो ऐसा, वो हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, दीज पीपल दे हैव नाइट क्लब। नाइट क्लब में जाएंगे और दारू पिएंगे और नशा चढ़ता है और नाचते हैं, उसके लिए खर्चा होता है, राइट? मैंने पता नहीं कितना 2000-5000 ऐसा टिकट होता है। वो हमारा, मैं जब बॉम्बे में नया आया है
हमको कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं था, इसलिए किधर भी आने नहीं देता था। बोलते अकेले नहीं जा सकते। हाँ हाँ Stag entry not allowed. हाँ अकेला नहीं, ये क्या से बोलते हैं अरे मम्मी मैं तो दूसरा गांव से आया, द गर्लफ्रेंड किधर मिलेगी, नहीं नॉट अलाउड ऐसा है, मुझे मालूम नहीं था ऐसा। फिर उसके लिए किसी को गर्लफ्रेंड को ढूंढना पड़ेगा, राइट। ऐसा बोलते हैं नो रोमांस विदाउट फाइनेंस, राइट। गर्लफ्रेंड भी नहीं आएगी ऐसा। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, 20 रुपए दीजिए, 20 रुपए दीजिए, चाय पिएगा। बोलते 20 रुपए क्यों? बोलता है 10 रुपए है ना चाय, नहीं मेरा गर्लफ्रेंड को भी पिलाना है। अरे तुम भिखारी हो, तुमको गर्लफ्रेंड भी है? बोलते उन्होंने मनाई भिखारी। ऐसा नाइट क्लब है, नाइट क्लब फिर नाचेगा, फिर बाद में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ये कोई गर्लफ्रेंड को टच करेगा, फिर उसके बाद है ना हैंगओवर, राइट। फिर उसके लिए अच्छा से चप्पल विप्पल पहन के नहीं जा सकता है, आपको शू पहनना पड़ेगा, ये सब ये सब होता है। फिर बाद में हैंगओवर, फिर बटर मिल्क पियो, ये बहुत कभी कभी मैं कुछ नींबू रस पियो, कुछ मेडिसिन रहता है उसको, हैंगओवर गेट ओवर द हैंग। लेकिन हमारा इधर है ना मॉर्निंग क्लब है हरे कृष्ण मंदिर में। हाँ अच्छा से 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक सो जाइए, हाँ, और जल्दी उठ जाइए 3:30 बजे, और अच्छा से ठंडा पानी से नहाइए और शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर आइए, और इतना सुंदर दर्शन होता है राधा रास बिहारी का, और राधा रास बिहारी का सुंदर मुख देख के इंटॉक्सिकेट हो जाओ और आनंद में नाचो, हाँ, और नो हैंगओवर, और कोई गर्लफ्रेंड का जरूरत नहीं है या बॉयफ्रेंड का जरूरत नहीं, राइट। विच इज़ बेटर, मॉर्निंग क्लब और नाइट क्लब? First night and then directly morning. दोनों नहीं चलेगा। मॉर्निंग क्लब, एसोसिएशन, राइट, और बुक्स, बहुत सारे प्रभुपाद जी का किताब, जैसा कि भगवद गीता है, इतना वैल्यूबल है ये बुक्स। एक बार एक व्यक्ति कुछ ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ था अमेरिका में, वो खुदकुशी कर रहा था, वो गाड़ी का वो बंद करके कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में रिलीज़ कर रहा था। एक माता जी आई थी, वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, तो खोल नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया, एक किताब था बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ करके, उसको खोल के विंडशील्ड के ऊपर रख दिया था। फिर ये व्यक्ति मरना आता, उन्होंने एक पिक्चर देखा था। प्रभुपाद जी ने बोला हमारा जो पिक्चर्स है, हमारा इस्कॉन के किताबों में हमारा पिक्चर्स है, वो विंडोज़ टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कि प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, इसलिए वो कैसे, उनको मालूम है क्या क्या है, इसलिए एग्जैक्ट कृष्ण कैसा दिखते हैं, गोलोक वृंदावन कैसा दिखता है, वैकुंठ कैसा दिखता है, ये सब वर्णन करके प्रभुपाद जी पिक्चर्स में रखा था। फिर उन्होंने वो पिक्चर देख के वो इम्प्रेस हो गया था। उन्होंने बोला ठीक है, मरने से पहले कुछ अच्छा किताब पढ़ के मर जाऊँगा। फिर खोला, किताब लिया, पढ़ा, उसको इतना अच्छा लगा कि मर रहा हूँ मैं, इतना अच्छा सुंदर जिंदगी है, जीवन है, ऐसा करके वो जाके मंदिर में ज्वाइन हो गया। इतना ब्यूटीफुल है, जैसे कि इतना सारे लोगों का जिंदगी बचा है भगवान का, प्रभुपाद जी का किताब इतना सुंदर। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आजकल? तो मैंने तो इतने साल हो गया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा,
आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में नथिंग न्यू, सेम थिंग्स, एक इधर का घोटाला उधर का घोटाला, उसका रेप हो गया, इसका मर्डर हो गया, नेम कैरेक्टर का नेम चेंज होता है बस। लेकिन आप भगवद गीता पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, मैं हर दिन भगवद गीता पढ़ता हूँ, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं भगवद गीता नहीं पढ़ा। फिर भी मुझे अच्छा लगता है, नया नया चीज़ सीखने को मिलता है मेरे को, ऐसा। इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट कम से कम एक श्लोक तो पढ़िए हर दिन। संस्कृत का श्लोक है और ट्रांसलेशन है और परपोर्ट है, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, राइट। और चैंटिंग, इतना चैंटिंग इतना पावरफुल है। एक बार एक योगी, ये पद्म पुराण में लिखा है, एक योगी एक पेड़ के नीचे बहुत साल से तपस्या कर रहा था। इसी बीच में एक मुसलमान उधर शौच करने के लिए आया था। पहले ये जो सुअर लोग हैं ना, उनको ट्रेनिंग दिया जा। पहले ये सब टॉयलेट वॉयलेट नहीं होते ना, ये सुअर आके खा लेता था, वो ऐसा कुछ। फिर वो सुअर आया था, वो जंगल का सुअर था, भयानक। वो जब शौच कर रहा था, वो आया था, उसको देख के उसको हटाने के लिए उसको गाली दिया उन्होंने। क्या बोला? हराम, हराम। फिर इसी बीच में वो उधर से थोड़ा ऊपर से नीचे गिर के मर गया। योगी बहुत साल से तपस्या कर रहा था, इसलिए वो उन्होंने देखा कुछ विष्णुदूत लोग आके वो मुसलमान को अपने साथ वैकुंठ लेके चला गया। योगी ऐसा ही रह गया ओम ओम करते हुए। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ये तो अन्याय है, मैं इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये मुसलमान हराम करके गाली दे के, तो अरे बाबा, हराम में राम है, हाँ। और मृत्यु काल में राम का नाम लेते हुए मर गया, इसलिए उसको मुक्ति मिल गया। इतना पावरफुल है चैंटिंग। इसलिए अजामिला करके बहुत फेमस स्टोरी है। उन्होंने बचपन में बहुत भक्ति किया था, लेकिन यूथ में एक वेश्या को देख के वो मोहित हो गया, अट्रैक्ट हो गया था। फिर आजकल भी ऐसा हम देखते हैं, वेश्या को कौन शादी करते हैं, राइट? यूज़ करके पैसा दे के छोड़ देता है। लेकिन इतना मूर्ख था ये अजामिला, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उनको अपना पत्नी को छोड़ के वेश्या के साथ शादी कर लिया, उसके साथ 10 बच्चे हो गए। लेकिन उनका भाग्य था, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्ति करके छोड़ दिया तो भी भगवान उनका रिकग्नाइज करते हैं, ऐसा व्यक्ति को हमेशा याद करते हैं। अजामिले को बचाने के लिए भगवान ने कुछ वैष्णव लोगों को भेजा था। जब उसका आखिरी बेटा हुआ था, उनका नामकरण के टाइम पे कुछ वैष्णव लोग आए थे। फिर उनको देख के उसको याद आया, बोलते अरे हमारे बेटे का नाम रखो। बोला नारायण। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, मेरा नाम पहला नाम था शिवराम, श्रीनिवास करके बुलाएंगे, 10 लोग पीछे मुड़ के देखेंगे। कोई मार्केट में चले जाओ और श्रीनिवास करके बुलाओ, 10 लोग पीछे देखेंगे, राइट? सबका नाम भगवान के नाम से जुड़ा रहता है। इनका नाम है वेंकट,
नॉर्थ इंडिया में कल्चर चला गया, पिंकू टिंकू, ये क्या क्या नाम रखते हैं, हाँ, बबलू, बिट्टू, ऐसा क्यों? क्योंकि अजामिला लास्ट मिनट में, आप लोग याद रखना ये बात, आप लोग ये बात याद रखना, हमारा शरीर में आप लोग सुने होंगे जब मृत्यु के टाइम पे 36,000 बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है। क्यों मालूम है? हाँ, क्योंकि हमारा शरीर में 72,000 नाड़ी होते हैं, नाड़ी। ये जो पंचवायु, प्राणवायु बोलते हैं, ये प्राणवायु है ना, सारे नाड़ियों के नीचे जाते हैं और वो काम कराता है। प्राणवायु की वजह से हमारा इंद्रिय वगैरह काम करते हैं। ये 5 तरह का वायु बहता रहता है, वो उनके वायु, इसलिए वायु प्राणायाम करने से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। जब यमदूत लोग आते हैं, बहुत सारे लोग है ना, अमेरिका में भी वो लोग साक्षी दिए थे कि मृत्यु का टाइम पे ये 3 लोग आते हैं, क्योंकि हम BMW चलाते हैं। क्या मालूम? BMW, BMW का मतलब बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स के साथ हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, इसलिए हमको लेके जाने के लिए 3 यमदूत लोग आते हैं। एक बार आप छठवां स्कंद भागवतम देखेंगे, उसके कवर के पीछे फोटो है, यमदूत लोग आते हैं और विष्णुदूत लोग आते हैं और अजामिला को लेके जाने के लिए आते हैं। वो पिक्चर, वो एयरपोर्ट में वो एक माता जी किताब बांट रहे थे, एक व्यक्ति ने देखा और उसको देखते ही भयभीत हो गया, हाँ, भय से कंपन हो गया और भागने लगा। फिर ये माता जी पीछे गई, पकड़ा, क्यों ऐसा क्या हो गया? बोलते बीच में मेरे को हार्ट अटैक आया, ये 3 लोगों को मैंने देखा था। मेरा पिताजी भी 10 साल पहले उसको कुछ हो गया था, वो देख रहा था यमदूत लोगों को। मैं जब मेरे को इन्फॉर्म किया, फिर मैंने फिर वो लोग, मैं जब गया था नरसिंह आरती वगैरह जब गाने के वजह से वो लोग चले गए। वो भक्तों के पास नहीं आते हैं, जब भक्त लोग के पास। हमारा एक ड्रेस है, मैंने वृंदावन में एक माता जी के पास गया था वो ड्रेस बनाने के लिए, बहुत 20 साल पहले, कुछ 15 साल पहले। वो माता जी मुझे बोल रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया से थी। उनका पिताजी को बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में रखा है। हॉस्पिटल में रखा तो वो चिल्लाता था, बोलता है प्लीज़ लीव मी, टेल देम टू गो अवे, टेल देम टू गो अवे, ऐसा करके। किसी को समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं था। वाई, हु टू हुम ही इज सेइंग टेल देम टू गो अवे, टेल देम टू गो अवे। फिर ये माता जी वृंदावन से गई थी ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने देखा अपना पिताजी बोल चिल्ला रहे थे टेल देम टू गो अवे, टेल देम टू गो अवे। फिर किताब निकाला छठवां स्कंद भागवतम का। आर यू सीइंग दिस पीपल? यस यस यस, दे आर वेरी भयानक, वेरी वेरी डेंजरस, टेल देम टू गो अवे। Said, I have a rule. Then she kept a picture of Narsingadev. And then her father became a devotee later on. Otherwise, he was always opposing her. ऐसा यमदूत लोग आते हैं, हमको लेके नहीं, जैसे भक्तों के पास नहीं आते यमदूत। हाँ, वेरी गुड। वेरी नाइस, थैंक यू। यमदूत लोग के दर्शन कर लो।
उनका भयानक रूप देख के भयभीत हो गया अजामिला ने, अपना बेटा को बुलाया, अपना बेटा को बुलाया, नारायणा इधर आओ करके। लेकिन भगवान नारायण के विष्णुदूत पहुंच गए। चार लोग आए, क्योंकि नारायणा, 4 लोग हैं, फिर अजामिले को बचाए थे। वैसा ही प्रैक्टिस करने से हमको जिंदगी भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू, ऑफ कोर्स कभी कभी हो जाता है, भगवान की कृपा से, या कोई बोल देगा हरे कृष्णा। जैसा कि एक माता जी हमेशा, एक डिवोटी, उनका बेटा ज्वाइन किया था हरे कृष्णा में, फिर वो बहुत अपोज करती थी, लेकिन लास्ट डेज में वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। फिर बेटा, प्रभुपाद जी ने बोला जाके तुम अपने माँ को देख के आओ। फिर माँ को देखने के लिए गया, फिर उन्होंने बोला हाउ इज योर कृष्णा, वो प्रश्न पूछे थे उनको देख के, और प्राण त्याग कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला योर मदर हैज गॉन बैक टू गॉड हेड। इतना पावरफुल है चैंटिंग हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ भी हो जाए, कितना भी पापी हो जाओ तुम, लेकिन चैंटिंग कभी नहीं छोड़ने का। क्या नुकसान है, राइट? हमेशा चैंटिंग करते, हर दिन चैंटिंग करने से हमको ऐसा स्टेज रीच होना चाहिए, हम कुछ गिर जाते हैं, हम बोलते हैं अम्मा, राइट? कुछ डेंजर आ गया तो अम्मा बोलते हैं या बाबा ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमको ऐसा स्टेज रीच करना चाहिए, कुछ हो गया तो कृष्णा, राइट? कृष्णा ऐसा करके कृष्णा। उसके लिए भगवान बोलते हैं। लेकिन हम, ऐसा भी स्टोरी है कि भरत महाराज, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप भगवान के नाम नहीं लेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, जिंदगी भर क्या सोचते हैं, क्या कैसा जिए हैं, उसी का थाट आपको आएगी लास्ट में, राइट? इसलिए कुत्ता को पालना, जैसे कि भरत महाराज बहुत महान भक्त थे, वो एक हरिण को पाल रहा था, फिर अंतकाल में एक हरिण का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया, इसलिए अगला जन्म में एक हरिण बन गया। आप लोग कुत्ता को रखेगा, कुत्ता को पालेगा, कुत्ता को याद करेगा तो कुत्ता बन जाएगा। हस्बैंड को, इसलिए आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, हस्बैंड को इसलिए एक पुरुष को घर में प्राण त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए घर को, हरिद्वार वृंदावन किधर चले जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में पत्नी के और बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप पत्नी के बारे में सोचेगा, आप अगला जन्म में स्त्री बन जाएगा। लेकिन लेडीज़ को हस्बैंड के बारे में सोचेगा, फिर वो पुरुष बनेगा। जैसा जो लोग दारू पीता है, इस परस्त्री के साथ संग करता है और मांस मच्छी खाएगा, गैम्बलिंग करेगा, वो अगला जन्म में सुअर बन जाएगा, राइट? ऐसा हमारा प्रवृत्ति, कैसा स्वभाव हमने बनाया, उसके अनुसार उसका चिंतन होगी लास्ट में। इसलिए, लेकिन मैंने पहला आपसे पूछा था, कर्म करने से अगला शरीर बनेगा। हाँ, फिर कर्म से कैसा बचने का, भगवान उसके लिए जवाब दे रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर है भगवद गीता में, आपको समझाने वाला होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा मय्यर्पित मनोबुद्धिर
माँ में वैश्यसी असंशय, वापस असंशय, डोंट डाउट बोल रहे हैं। भगवान भगवद गीता सुनने के बाद कृष्ण भगवान अर्जुन को काम करने से रोका नहीं था, राइट? युद्ध करवाया ना, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को कन्विंस करके युद्ध करवाए थे। लेकिन युद्ध कैसा करने का सिखाए थे, कैसा? वाइल फाइटिंग रिमेंबर मी। आप क्या काम करती है? बिजनेस है। बिजनेस के टाइम पे आप कृष्ण भगवान को याद कैसे करेंगे? करा दो, हाँ, काम करा दो। राइट? भगवान ने पहला, जब दूसरा अध्याय के तक है ना, अर्जुन सोच रहा था ये युद्ध मेरे लिए है, ये युद्ध मेरे लिए है। लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को कन्विंस किया था, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए युद्ध करो। तभी कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, है ना? कृष्ण का स्मरण हो जाएगा ना, मैं कृष्ण के लिए काम कर रहा हूं। आप कृष्ण के लिए बिजनेस करेगा, कृष्ण का स्मरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस बीच में दो चीज इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करो। बोलो जनदीप, मन और बुद्धि को कैसा अर्पण करेंगे कृष्ण को? हाँ, मन का लक्षण है विमर्श करना। विमर्श मीन्स हम छोटी सी चीज़ है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना झगड़ा क्यों होता है? बात का बतंगड़ मत बनाओ। हम छोटी सी चीज़ को लेके हम एक्सपेंड करते हैं। हो सकता है ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। मन है ना, ऐसा इतना बड़ा सोचता रहता है ना। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इतना निरंतर चिंतन करते रहते हैं हम, है ना। चिता और चिंता दोनों के बीच में क्या अंतर है पता है? हाँ, चिता और चिंता। आपका नाम क्या है? सपना जी। आप दोनों के बीच में क्या अंतर है मालूम है? अरे चिता और चिंता। चिता मरने वाले को जलाता है, चिंता जीवित व्यक्ति को जलाता है। समझ में आया? ऐसा मन का पावर है। और मन का लक्षण है विमर्श करना। विमर्श, हाँ, नहीं, डिस्क्रिमिनेट और इंटेलिजेंट क्रिटिसाइज, दैट इज मीन्स एक्सपेंड करना। विमर्श ही नहीं हुआ है ना, तो भगवान भी बोल रहे हैं तुम इसके बारे में सोचो। और इंटेलिजेंस का काम है निश्चय करना। ये दोनों हम किताब पढ़ के, कथा सुन के कृष्ण के बारे में चिंतन करना सीखना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए कि कृष्ण के भगवान सब कुछ है, मैं उनके लिए काम करूँगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि का मतलब ये अर्थ है। सबको समझ में आ रहा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशय। ये चैप्टर का अक्षर पर ब्रह्म योग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ भगवान ने क्या हो गया, अभ्यास योग है। क्या? अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्।
अनुस्मरणा, अनुचिंता बार बार आता रहता है, राइट। अनुस्मरणा, अनुचिंता का मतलब हमेशा याद करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थ लोगों को 24 आवर्स आप लोग स्मरण नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अनुस्मरण का मतलब एवरी डे यू मस्ट रिमेंबर। 4 माला जप कर रहे, 5 माला, 10 माला जप कर रहे, जप करने का। और ये बहुत आधा घंटा पढ़ेगा, आधा घंटा पढ़ना चाहिए, राइट। हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाएगा, हफ्ते में 1 दिन सत्संग जाएगा। ये सब है ना, विदाउट फेल आपको करना चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। देन वो आपके लिए अनुस्मरण है, राइट। वो क्या है वो? सो परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। परम पुरुष के बारे में चिंतन करना चाहिए। देन कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम समसपरस्तात्। वो कौन है वो परम पुरुष? वो है कविम पुराणम। कवि का मतलब एक्सपर्ट, नॉलेज, ऐसा। फिर 4 श्लोकों में भगवान बोलते हैं योगी लोग भगवान को कैसा प्राप्त करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। योग बल के वजह से प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को विषयों से अलग करना। उसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। प्राणायाम का मतलब क्या है? हमारा जैसा कि कान है ना, फिल्मी म्यूजिक सुनना चाहता है। आँखें हैं, फिल्म इधर उधर देखने का चाहता है। जीवा है, जीव है, बहुत सारे चीज़ को खाना। लेकिन ये सब है ना निर्जीव है, कान, आँखें, ये सब। ये जो प्राणवायु इसको जाके टच करता है ना, इंद्रियों को टच करते हैं, तभी इंद्रियां चाहने लगते हैं। जैसा कि प्राणवायु जाके कान को टच करेगा, है, टच करेगा, फिर कान है ना सुनना चाहता है फिल्मी म्यूजिक। सो प्रत्याहार का मतलब प्राणायाम के द्वारा ये वायुओं को स्थगित करते हैं। और जब प्राणवायु इन कान को टच नहीं करता है, फिर ऐसा व्यक्ति कान फिल्मी म्यूजिक सुनना नहीं चाहेगा। प्राणवायु हमारा जीव को टच नहीं करेगा, फिर ऐसा वैसा चीज़ खाने को मन नहीं करता है। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। इंद्रियों को विषयों से दूर रखने का, उसके लिए हमको वायुओं का बैलेंसिंग करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा कुंभका, रेचका, कुंभका और पूरका, मीन्स इनहेलिंग एंड होल्डिंग और एक्सेलिंग। Could you please say the same thing in English? मुझे समझ में नहीं। क्या क्या? आप इंग्लिश में ये चीज़ को प्लीज बोलिए। हमारा इंद्रिय जो है वो इनर्ट है, काम वैसा अपने आप काम नहीं करते, राइट। ये जो वायु जो है प्राणायाम, ये जो वायु जो है हमारा शरीर में ट्रैवलिंग करता रहता है। आयन प्राणायाम ट्रैवलिंग करता रहता है। ये जब वायु जो है जीव को टच करता है, फिर तभी जीव चाहता है ये खाने का वो खाने का। लेकिन हम कैसा भी करके प्राणायाम करके कंट्रोल करेंगे, ये वायुओं को होल्डिंग करके रखेंगे,
फिर वो जब ये वायु जब ट्रैवलिंग नहीं करके ये इंद्रियों को टच नहीं करता है, तभी हमारा इंद्रियां एकदम कंट्रोल में रहते हैं। प्राणवायु है कहाँ? हमारा शरीर में बहता रहता है 5। प्राणायाम का मतलब ये वायुओं को कंट्रोल करने। समझ में आया? पहली बार सुना ना आप लोग? हाँ? General value or only prana value? 5। When we get material desires, when the senses desire for material things, that time prana value is not in touch with that sense. When this pranavayu comes in touch with these senses, then only we desire something. So these ऋषि लोग, वो लोग कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए वो लोग डिज़ायर नहीं करते हैं। फिर जब कंट्रोल में वापस टच में आ जाते हैं, फिर वापस कंट्रोल चला जाता है। इसलिए हाँ, उसके लिए इसलिए साधना, ABCD। शांति में रह सकते हैं क्योंकि पिक्चर देखना नहीं, इसलिए पैसा खर्चा नहीं। तो अब एक पिक्चर देखने के लिए कितना 1000 रुपये लगता है ना, कम से कम। हाँ, 500 रुपये टिकट और 200-300 वो पॉपकॉर्न, हाँ, समोसा और या हम इनहेलिंग और होल्डिंग और एक्सेलिंग, राइट। होल्डिंग का टाइम हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए और एक्सेलिंग इनहेलिंग से ज़्यादा। जैसे कि इनहेलिंग आप 4 बार करें, 4 काउंट करेगा, फिर एक्सेलिंग 8, फिर कुंभ का 16 टाइम्स, 16 ऐसा होल्डिंग। फिर ऐसा वो लोग है ना 24 घंटे 6 महीना ऐसा होल्ड करके रखते हैं। इसको बोलते हैं योग बलेन चैव। ऐसे लोग प्राण छोड़ते टाइम ये जो चक्र है ना, ये चक्रों को ऊपर करते हैं, ऊपर करके ये जो इधर है ना ब्रह्मरंध्र है, उसको छेद करके आत्मा को ऊपर से भेजते हैं। आप लोग ये ऑब्जर्व करो, जो पापी लोग होते हैं उसका आत्मा नीचे से जाता है, क्योंकि वो लोग लास्ट मिनट में टॉयलेट हो जाता है या पेशाब हो जाता है, इसका मतलब वो नीचे से गया। ऐसे लोग हैं ना नीचे का लोक में जाते हैं। जो पुण्य करते हैं, कभी कभी किसी का मुंह खुला रहता है, राइट, मुंह खुला रहता है, इसका मतलब मुंह से गया। किसी का आँख खुला रहता है, इसलिए आत्मा आँखों से गया। ऐसा नवरंध्र है कि किधर से भी जा सकता है। लेकिन इधर एक है, एकादशी इसलिए करते हैं, एकादशी, राइट, हाँ, इसको खोलने का हमको आना चाहिए। इधर एक ब्रह्मरंध्र है, इसको खोल के ना आत्मा जाएगा ऊपर के लोकों में, राइट। इसको खोलने के लिए हमारा 11 रंध्र है, नवरंध्र है, और ये एक रंध्र है हमेशा के लिए बंद हो जाता है जन्म, हाँ, या जन्म के टाइम पे। और एक रंध्र है
सबको खुलता नहीं। एकादशी का व्रत इसलिए है कि 11वां रंध्र को खोलने का कैसा। ये 4 श्लोक में भगवान बोलते हैं, यद अक्षरम वेद विदो विशंति यद्यथयो वीतराग। हाँ, नहीं ना, अभी हो भी टाइम हो गया। फिर बाद में भगवान वापस बोलते हैं, राइट, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मन व्याहरण माम अनुस्मरण, राइट। ये जो योगी लोग हैं ओम का उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करते हैं और वो लोग ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्मा जी का लोक है और एक है ब्रह्मलोक, और एक लोक ब्रह्मलोक है जो भगवान का ये है मुक्ति लोक बोलते हैं, मुक्ति है। और फिर बाद में भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान वापस भक्ति योग में आ जाते हैं कि ये सब करने का जरूरत नहीं है, मेरा चिंतन करते रहो हमेशा। हाँ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुक्कालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार को भगवान ने डेफिनेशन दिया है, क्या है, दुक्कालयम, है ना, दुख का आलय है। सिर्फ दुख के अलावा संसार में कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, फिर माम उपेत्य पुनर्जन्म दुक्कालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमाम गति। लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा स्मरण करते हुए, फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्चना। ब्रह्मलोक, ये पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक किधर भी जाएगा वापस जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो लोग मेरे लोक में आएगा वापस उसको जन्म नहीं। माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर है, जो लोग कृष्ण के लोक में जाएंगे वापस कभी फिर भगवान दक्षिणायन और उत्तरायण, राइट, उत्तरायण आप लोग मालूम है किसी का? अभी कौन सा चल रहा है? दक्षिणायन। उत्तरायण जनवरी 14 से स्टार्ट होता है। जो योगी लोग हैं उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं। जब भीष्मदेव का जो गिराया गया है युद्ध में, रणभूमि में, ब्रह्मदेव ने मैसेज भेजा था सेजस के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, अरे भीष्मदेव को रिमाइंड करो अभी दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण तक इंतज़ार करो। इसलिए भीष्मदेव कितना 55 डेज ऐसा कुछ इंतज़ार करते हैं। जनवरी 14 को उत्तरायण आता है, कैप्रिकॉन, सन इज ट्रैवर्सिंग मकर, राइट, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। लेकिन भगवान एश्योरेंस देते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मति एके याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, राइट। शुक्ल पक्ष का मतलब वैक्सिंग मून, राइट, और कृष्ण पक्ष का मतलब वेनिंग मून। ये सब मुहूर्त, वो लोग योगी लोग हैं ना, ये सब मुहूर्त देख के शरीर त्याग करते हैं। अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ला षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। उत्तरायण में अग्नि में, ज्योति में वो प्राण त्याग करते हैं, उसको वापस जन्म लेने का जरूरत नहीं है, राइट। धूमो रात्रि अह कृष्णा षण्मासा दक्षिणायन यत्र चांद्रमासम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। ऐसे लोग जो दक्षिणायन में त्याग करते हैं, चंद्र रात के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे त्याग करते हैं, उसको चंद्र लोग जाते हैं, वापस उसको आना पड़ता है। लेकिन जो भक्त है उसको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, कि कैसा भी करके कभी भी प्राण त्याग करो, मेरे नाम स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा
फिर उसको मुक्ति मिल जाएगा। प्रभु जी, yogis लोग, they are not भक्त। नहीं, योगी और भक्त में क्या अंतर है? हाँ, योगी और भक्त में डिफरेंस क्या है? अगला चैप्टर में भगवान बोलते हैं, या जो भक्त है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास्यम नवविध भक्ति हम करते हैं। वो लोग है ना, हिमालय में जाके तपस्या करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम स्मरण करते हैं। ठीक है, समझ में आया? 8 चैप्टर भगवद गीता नटशेल। हाँ, अपने ABCD में ABC कवर की थी। हाँ, डी फॉर डाइट प्रसादम। अभी लेने वाले हैं प्रसाद, राइट? सो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक ये है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स्मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। राइट? हमारा आप लोग अभी वो